رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اعزاز گرامی ارشاد رب العزت ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ آیت جو آیت نماز سے بہت مشہور ہے، یہی اس عشرہ مجالس کا موضوع ہے۔ نامساعد ناگزیر حالات کی وجہ سے ہندوستان کے مختلف علاقے عزاداری کی اور رونقوں سے، عزاداری کی برکات سے محروم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں عزاداری اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ اس کی برکات ہماری زندگیوں میں نازل فرمائے۔ عزیزو، اللہ نے ولایت کو حصر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر گفتگو ولایت اللہ پر ہے، اور ولایت اللہ سے پہلے ظاہر ہے وجود پروردگار پہ گفتگو ہوگی تو مقدمہ بنے گا۔ وجود پروردگار ولایت پروردگار کا مقدمہ ہے۔ تو آج کی جو مجلس ہے وہ وجود پروردگار، توحد و تشخص سے ذات پروردگار پر ہے۔ اس کا واجب الوجود ہونا تمام اذہان ممکنات کے لیے، اذہان انسانی کے لیے بالکل لازم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس وجود کو نہ پہلے عدم سے تعلق تھا نہ کبھی عدم سے تعلق رہے گا۔ جس کے وجود کو عدم سے کبھی تعلق نہ ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ جس کا ہونا تھا، ہے اور رہے گا وہ واجب الوجود ہے۔ تمام ما سوی اللہ جتنی چیزیں ممکنات ہیں، ممکن الوجود، واجب الوجود اور ممتنع الوجود، تین موجودات۔ جو واجب الوجود ہے اس کے لیے ہمیشہ وجود ہے، جو ممکن الوجود ہے جو پہلے نہیں تھا اور نہیں رہے گا، یعنی بین العدمین۔ بین العدمین کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو نا کے درمیان میں ہے وہ گویا نا کی طرح ہی ہے۔ جو دو نہیں کے درمیان ہاں ہے اس کا اعتباری ہاں ہے، اب ہے اور اب نہیں، تو گویا نام ہی ہے۔ جس کا سرا پہلے بھی عدم سے ہو اور آخر بھی عدم سے ہو، وہ درمیانی وجود ممکن الوجود، وہ ہم اور آپ تمام یہ عوالم ممکنات میں۔ اب ممکن کو وجود میں ہونے کے لیے یا تو یہ ہے کہ ممکن خود اپنی علت بنے اور خود ہی معلول ہو، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو لا ہے، علت اور معلول کا جو قانون ہے، اس کے اعتبار سے معلول خود اپنی علت ہو اور علت خود اپنی معلول ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ جو شے ہوگی
तो किसी पे डिपेंड होगी, और जिस पर डिपेंड है वो भी मुकम्मल यही हो और ये भी मुकम्मल वो हो, तो फिर ये दो क्यों होंगे? तो जो वजूद है मुमकिन, यानी मैं और आप, ये तमाम जहाने कायनात, आलमे मुमकिनात मजमूए मुमकिनात होते हुए पॉसिबल वजूद है, तो इसके होते हुए ज़रूरी है कि इसका कोई खारजी तौर पर इसको वजूद देने वाला हो, क्योंकि जो नहीं था नहीं रहेगा उसका होने के लिए ज़रूरी है कि कोई बाहर से इल्लत, उसके अंदर इल्लत नहीं पाई जाएगी। अगर अंदर ही इल्लत पाई जाएगी तो ये होगा कि जो शय जिस पर डिपेंड है वो खुद ही हो, यानी मैं खुद अपने पर डिपेंड हूँ। मैं पहले नहीं था, मैं जब चाहा हो गया, तो जब चाहा हो गया तो मेरा चाहना मेरे होने से पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं पहले रहूँगा तो चाहूँगा। तो लिहाजा जब मेरा चाहना मेरे होने से पहले मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा मौकूफ और मौकूफ अलैह पर बात होती है। जिस पर मौकूफ है खुद ही है, और जिस पर मौकूफ नहीं है वो भी खुद ही है। तो ये इल्लत और मालूल की गुफ्तगू होती है, जो नामुमकिन सी बात है। अब मैं नहीं था और मेरा होना मुमकिन है, तो मैं हुआ कैसे? तो इस होने में मैं अपने वजूद से खुद हुआ हूँ, तो इसमें तरजीह बिला मुरज्जे। तरजीह बिला मुरज्जे का मतलब ये होता है कि आप नहीं थे और हैं, और होने के लिए आपको किसने चाहा? तो फिर यहाँ पर कोई तीसरी ताकत की जरूरत है, क्योंकि आपका जुज अगर आप है तो आपका जुज आपकी इल्लत नहीं बन सकता, आप अपनी इल्लत नहीं बन सकते। तो ला मुहाला एक तीसरी खारजी वजूद की जरूरत है, जो आपको नहीं से हाँ करे, अदम से वजूद में लाए। अब जो ये अदम से वजूद में लाने वाली तीसरी कुव्वत है, इसी को खुदा कहा जाता है। और वो जो है वजूद में लाने वाला, वो आपके पूरे मजमूए वजूद से वाकिफ हो, इसलिए वो आलिम भी है। वो आपको जब चाहे खल्क करे, इसलिए वो कादिर भी है। वो आपको जो खल्क करेगा तो हयात देगा, इसलिए वो मुही हयात का देने वाला है। और जब चाहे खल्क करे तो फना करने भी की उससे कुव्वत होगी। अगर फना की कुव्वत ना होगी तो मजबूर हो जाएगा। तो लिहाजा जिसे फना की कुव्वत हासिल है, बका की कुव्वत हासिल है, वो कादिर भी है। तो एक ऐसी इल्लत जो कादिर भी हो, खालिक भी हो, एक ऐसी इल्लत जो अपने वजूद में वाजिब भी हो और मुमकिन को खिलत वजूद से नवाजे, उसी को अल्लाह जल्ल मजदहू यानी परवरदिगार कहा जाता है। ये मुकदमा बन रहा है, वजूद बारी का मुकदमा, ये ऐसे होगा। अब जब ये बात है तो फिर अजीजान गिरामी, अब वो जो वाजिबुल वजूद है वो या तो वाहिद है या इस्नैन है, या दो है वो या एक है। अगर दो होगा तो दो में से पहले कौन है? क्योंकि दो बगैर एक के नहीं होता, तो एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा। तो जब एक मुकद्दम हो गया तो एक के बाद ही दो होता है। अगर दो वाजिबुल वजूद हो गए तो दो होने का मफहूम बता रहा है, उनमें एक रुतबे के एतबार से पहले कम है। तो जो कम है तो या मसनू होगा या हदीस होगा। तो वो मसनू है, बनाया हुआ, तो फिर दो दो नहीं रहते। जब दो हो गए तो दो में से एक मुकद्दम है, जो मुकद्दम है वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। तो यहाँ मसला दुई का खत्म हो जाता है। यहाँ सीधे सीधे आप वजूद परवरदिगार की हद तक तमाम मज़ाहिब आलम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक खालिक का वजूद है, यानी कोई मालिक है। जो ये कहता है कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, वो भी खुदा का लफ्ज हटा देता है, गॉड, अल्लाह, ये नहीं मानता। लेकिन ये मानता जरूर है कि इस कायनात के पीछे एक यूनिवर्सल माइंड है, इस कायनात के पीछे एक आलमी दानिश है, इस कायनात के पीछे एक आलमी शऊर है, इस कायनात के पीछे एक अक्ल कुल है, जो पूरी इस कायनात को डिजाइन दिए हुए, ये पूरी कायनात का सिस्टम चलाने वाला है। अब जब इंसानी अक्ल ने सोचा तो महदूद अक्ल कहाँ तक जाएगी? उसने एक नाम दिया, उसका नाम रखा कि वो गॉड है। अरे भाई, ये गॉड क्यों कह रहे हैं आप? तो कहा भाई जनरेशन, वो है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर खल्क करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, डिस्ट्रॉयर बर्बाद कर देने वाला, फना कर देने वाला। तो ये तीन कुव्वतों को उन्होंने एक जात में देखकर उसका जो है शॉर्ट फॉर्म रखा गॉड। ये जो कॉन्सेप्ट गया है ईसाइयों के अंदर, ये हिंदुस्तान से गया। हिंदुस्तान में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट
बहुत हजारों साल पुराना है। यहाँ जो मारने वाला अलग खुदा है और पैदा करने वाला अलग खुदा है और आपके परवरिश करने वाला अलग खुदा है। ये जो हिंदुस्तानियों का वैधानिक तस्वुर था, बल्कि वैधानिक नहीं हिंदुस्तानी तस्वुर था, जिसमें लोगों ने त्रिमूर्ति का तस्वुर पैदा किया। ये ग्रीक में गया, ग्रीक से वहां से जो है ईसाई दुनिया में गया तो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आया, और वहां से फिर ये जो गॉड का लफ्ज आया उसके अंदर ये ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ही का शॉर्ट फॉर्म आपको लफ्ज गॉड में मिल जाता है। लेकिन अल्लाह उस जात को कहते हैं कि मासूम ने फरमाया, अल्लाह वो है, उस जात का नाम है जिसके अंदर तमाम सिफतें पाई जाती है। पालने वाला भी वही, मारने वाला भी वही, जिंदगी देने वाला भी वही। अगर उसमें एक भी कमाल और एक भी सिफत की कमी हो गई तो जो बाकमाल नहीं है वो हमारा खालिक व मालिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपको इस्लामी अहमियत समझ में आती है। इस्लाम में जो तस्वुर वहदत है, इस्लाम में जो अल्लाह के बारे में आलम इस्लाम की किताबें और हमारे इल्म तारीख ने जो बताया वो ये कि वो ज़ात के जो मुस्तजमाए जमी सिफात कमालिया रखती हो, जिसके अंदर तमाम सिफात कमालिया पाई जाती हो, जिसमें एक भी सिफत कमाल की कमी न हो, वो हमारा खुदा है। क्योंकि अगर किसी और में वो कमाल पाया गया और खुदा में ना हो तो फिर खुदा ही नहीं हुआ। अगर किसी में एक कमाल पाया गया, अगर वो अल्लाह में ना हो तो फिर वो अल्लाह जो है उस कमाल से महरूम है। तो जो ज़ात कमाल से महरूम है उसको खुदा कहने के वो लायक नहीं है, मालिक कहने के वो लायक नहीं है। तो दुनिया ने अल्लाह के यानी वजूद खुदा में सब मुत्तफिक है, लेकिन वजूद खुदा में मुत्तफिक होने के बाद ये हुआ कि अब उसके अंदर इतने कमाल है या नहीं, तो लोगों ने कमालात को बांटे और बांट करके कहा कि एक बड़ा खुदा है, बाकी सब छोटे छोटे खुदा है। रब्बुल अरबाब है इलाह वाहिद, बाकी छोटे छोटे रब है, उनको रब्बुल अनवा भी कहा गया, रब्बुल नौ भी कहा गया। सितारे हैं तो उसका एक अलग खुदा है, सूरज है तो उसका अलग खुदा है। मज़ाहिरे कायनात को लोगों ने खुदा का दर्जा देके उसकी परस्तिश की, और इलाहे वाहिद के नजरिए ने तमाम मज़ाहिरे कुदरत के, मज़ाहिरे कायनात के परस्तीदा खुदाओं का ऊपर खते तंसीब खींच दिया और बता दिया कि कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक बस वो ज़ात है जो सबको कमाल देती है, उसे कोई कमाल नहीं देता। सलवात पढ़ दे। जो सबको कमाल देती है उसे कोई कमाल नहीं देता, जो सबको वजूद देता है उसे कोई वजूद नहीं देता, जो सबको सिफात देता है उसको कोई सिफत नहीं देता, जो सबको इल्म देता है उसे कोई इल्म नहीं देता। उसकी कुदरतों के मातहत तमाम आलमे मुमकिनात है और उसकी कुदरतों से बाहर कोई नहीं है। यानी जो अपने वजूद में कमाल मुतलक, जमाल मुतलक, जलाल मुतलक है, वो ज़ात के जिस ज़ात ने अपना नाम भी नहीं रखा था। मंजिल हाहूत की बात थी, मंजिल हाहूत कहा ही उसे जाता है जहाँ सिर्फ हुवियत है, ज़ात है, नाम नहीं है। वो मंजिल के जहाँ वो मंजिले ज़ात में है, उसका तारुफ ना हुआ से है, ना उसका तारुफ अल्लाह से है, ना उसका इंट्रोडक्शन किसी ज़मीर से नहीं है, ना उसका ताल्लुक किसी नाम से उसका तारुफ है। तो वो मरहला जहाँ पर उसे सिर्फ हम ना उसे कह सकते हैं, ना अल्लाह कह सकते हैं, ना वो कह सकते हैं, जहाँ कह सकते में सकता हो दिमाग पर, जहाँ अक्ल पे सकता हो, जहाँ फिक्र पे सकता हो। बंदा कुछ कह नहीं सकता, फरिश्ते कुछ कह नहीं सकते, वो सिर्फ ज़ात ही ज़ात है। तो वो है मंजिले हाहूत। हाहूत के बाद की जो दूसरी मंजिल आती है लाहूत। लाहूत उलूहियत से मुताल्लिक है, उलूहियत सिफत है, ये बाद में है। ज़ात मुक़द्दम है, सिफत मुअख्खर है। ज़ात मुक़द्दम है, सिफत मुअख्खर है। अब जब ये उलूहियत का मरहला है तो इलाह की जब मंजिल आएगी तो जो ज़ात अपने कमालात के इंतहाई दर्जे पर है वही लायक इबादत है, और वो दो नहीं हो सकती, एक होगी। क्यों कि अगर एक है तो एकता के माना में है, क्योंकि वो जो एक है वो दो के माना में नहीं है। अल्लाह वाहिद है, वाहिद होने से पहले क्या है? अहद है। अहद ज़ात है, वाहिद होना सिफत। अहद होना
ذات है, वाहिद होना सिफत है. अहद जातियत को कहा गया, फर्दानियत को कहा गया, अहद फर्दियत को कहा गया. अल्लाह की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी फर्दियत है, वो है अहद. अहद में वाहिद छुपा है, यानी जात में सिफत छुपी, अहद में वाहिद छुपा है. अब वाहिद जो है वो इस्नैन से मिलके बना है, क्योंकि वाहिद में कई चीजें पोशीदा है, और इसी वाहिद से वहदानियत का ज़ुहूर है. वहदानियत, वाहिदियत, अहद, वाहिद और वाहिदियत, कसरते मज़ाहिर, तमाम आलम का वजूद जिससे हो रहा है वो है वाहिद. वाहिद जिससे सादिर हुआ वो है अहद. तो वहदानियत वाहिद में छुपी है, वाहिद अहद में छुपा है. ये सिलसिला बन रहा है. अब इसमें जो अहद है उसने अपने को वाहिद भी कहा है, लेकिन जहां उसने अपने को वाहिद कहा, वलिल्लाहि फलिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, अल्लाह के लिए वाहिद है, वो क़हार है. कुरान में तो मौला ने फरमाया हाँ वो अहद भी है, वाहिद भी है, लेकिन उसका वाहिद होना तुम्हारी तरह नहीं है. जैसे तुम एक वाहिद हो, तुम्हारे साथ दूसरे हो जाएं तो इस्नाइन दो हो गए. तो अल्लाह दो के माना में एक नहीं है, एक के माना में एक है, और वो एक एकता के माना में है, दो के मुकाबिल में एक नहीं है. वो एक एकता के माना में, वो अहद वाहिद अहद के माना में, अहद एकता के माना में, अहद वाहिद के मुकाबिल में नहीं है, वाहिद इस्नैन के मुकाबिल में नहीं है. ये तुम्हारे समझाने के लिए. क्यों कि आज तक लोगों को जो न्यूमरोलॉजी है उसकी फिलॉसफी नहीं मालूम. हम लोग गिनते आए 2 3 4, 1 2 3 4, मगर 2 को 2 क्यों कहते हैं, 4 को 4 क्यों कहते हैं, जुफ्त को जुफ्त क्यों कहते हैं, ताक को ताक क्यों कहते हैं. 3 होना क्या है, ताक है. 1 होना क्या है, ताक है. यानी जो अनडिवाइडेड है वो क्या है, ताक. जो डिवाइड हो जाए वो क्या है, जुफ्त. अब मौला ने बताया, ये फिलॉसफी मौला ने दी है. न्यूमरोलॉजी की फिलॉसफी क्या है. मेरी कोशिश होती है कि अशरा मजालिस में मैं जहाँ भी पढ़ूं और मजालिस में कुछ ऐसी बातें मेरी स्टडी में आ जाए हर साल कि जो मेरे लिए भी नहीं हो, मजमे के लिए भी नहीं हो, और मजमे के लिए नहीं हो ना हो, मेरे लिए तो कुछ नहीं हो जाती. तो क्यों लोग मुख्तलिफ ज़ाकिरीन को सुनते हैं, मुख्तलिफ उलमा को सुनते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी भी आ जाती हैं कि जो हो सकता है मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा हो, लेकिन अपने अफोर्दों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कमसिनों के लिए तो जाहिर सी बात है कोई नई बात होगी. ये जो न्यूमरोलॉजी है 1 2 3 4 ये जो हम पढ़ते हैं, तो इसकी फिलॉसफी क्या है, जो मौला ने जो कहा पहले उसको ज़हन में रखिए. अब ऐसा ना हो कि ये मेरा मजमून जो आ रहा है वो अनरिलेटेड मालूम ना हो. मौला ने फरमाया वो वाहिद है, मगर इस्नैन के मुकाबिल में वाहिद नहीं. तुम्हें जब वाहिद कहा जाएगा तो 2 के मुकाबिल में तुम्हें कहा जाएगा, उसे जब एक कहा जाएगा तो एकता के माना में एक कहा जाएगा, 2 के मुकाबिल में एक नहीं कहा जाएगा. क्योंकि ला जिद्दा लहू, 2 एक की जिद है और अल्लाह की कोई जिद नहीं है. 2 एक की जिद है, अल्लाह की कोई जिद नहीं. तो अब ये जो 2 4 3 ये जितने भी नंबर्स हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है. तो मासूम ने फरमाया कि जो भी अदद तुम्हारे ज़हन में आए, तुम्हारी जबान पर आए, अदद कैसे बनता है मौला ने वो बता. अदद बनता है, अदद को अदद क्यों कहते हैं, अदद को अदद इसलिए कहते हैं मादूद गिना गया, अदद गिनने जाने वाली चीज. वह अकल्लो अददा, कुरान में वह अकल्लो अददा, और थोड़ी सी तादाद. तादाद इद माने गिनना, शुमार करना. तो अब ये तो उसका रूल बन रहा है. फिलॉसफी इसकी ये है कि मौला फरमाते हैं, अदद कहते हैं निस्फ मजमुए हाशियतन, ये डिफिनीशन है. निस्फ मजमुए हाशियतन. अपने छोटे भाइयों के लिए बताना जरूरी है, वरना ये ना हो कि उर्दू को अरबी समझा जाए. जो कहा जा रहा है वो उर्दू है. निस्फ मजमुए हाशियतैन का मतलब ये होता ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा. तो जो ऊपर का हिस्सा है वो पहला हाशिया है, नीचे का हिस्सा दूसरा हाशिया है.
ये दोनों को जमा करके जब आधा कर लिया जाता है तो उस आधे को अदद कहते हैं। फिर एक बार बता दूं, ऊपर का एक हाशिया होता है, नीचे का हाशिया होता है, ये दोनों को टोटल करके उसके बाद जो उसका आधा किया जाता है तो उसको कहते हैं अदद। मसलन 2 है, 2 को 2 क्यों कहते हैं? 2 को 2 क्यों कहते हैं? 2 से पहले है 1, 2 के बाद क्या है? 3, तो 2 के बाद 3 हो गया, 2 से पहले 1 हो गया, तो अब ये 3 नीचे का हुआ, 2 के ऊपर 1 हुआ, वो ऊपर वाले को नीचे वाले दोनों को जमा करो तो कितना हुआ? 4, उसका आधा करो तो कितना हुआ? 2। अदद यूं बना है, अदद ऐसे बनता है, ये बताया गया है, इस तरीके से अदद बना। अब उसी तरीके से आपको अगर 5 बनाना हो तो 5 कैसे बनेगा? 4 के बाद 5 है तो बोले भाई 5 से पहले 4, 5 के बाद क्या है? 6, तो पहले और बाद वाले को टोटल करो, कितना बना? आधा करो, क्या बना? 5। यूं बनता है अदद। अदद लिखना और है, अदद लिखते वक्त समझना ये है कि बना कैसे। अदद आप लिख रहे हैं, 4 को 4 लिख रहे हैं, ये 4 बना कैसे? 5 बना कैसे? ये बनने का, अदद को बनाने का तरीका है। अब ये 4 में क्या है? 4 4 ना होता अगर उसमें 3 ना होता, 3 3 ना होता अगर 2 ना होता, 2 2 ना होता अगर उसमें 1 ना होता। यानी 4 की अददियत में 1 छुपा है, 5 की अददियत में 1 छुपा है। हर जगह 1 मख्फी है, 4 जाहिर है, 3 जाहिर है, 2 जाहिर है, सब में 1 छुपा है। यानी वहदत ही वहदत कसरत में बोल रही है। सलावत पढ़ दो मोहम्मद वाले। एक दो मिसालें काफी है, कोई भी अदद आप बनाइए। 6 अगर अदद बना रहे हैं तो 6 से पहले क्या हो जाएगा? उसके बाद 7, दोनों को जोड़ लीजिएगा, निस्फ कर दीजिए, हो गया अदद 6। तो ये तरीका हुआ, ये हमारे अपने छोटे भाइयों के लिए, बच्चों के लिए समझाने के लिए, और इसलिए ताकि जब भी वो लिखें तो इस बात को जहन में रखें। अब मौला फरमाते हैं कि देखो ये जो 2 है, 2 ना होता अगर उसमें 1 ना होता। 2 में 1 छुपा है, मगर 2 में 1 छुपने के बावजूद 2 को 2 ही कहा जाएगा, 1 नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2 1 का हिजाब है, 3 2 का हिजाब है, 4 3 का हिजाब है, 5 4 का हिजाब है। तो क्या इस हिजाब के मतलब क्या हुआ? एक है हिजाब, दूसरा है महजूब, एक है अदद, दूसरा है मादूद। तो ये जो हिजाब है, इसमें जो महजूब है, इस हिजाब में जो छुपा हुआ है वो कौन है? 2 हिजाब है, 1 महजूब है। तो एक क्या है? वहदत। वहदत किसमें छुपी है? वहदत किसमें छुपी है? अब जब इसको आप समझ गए तो ये है 12, ये है 14। इन्होंने कहा नहनो हिजाबुल्लाह, हमारी कसरत में वो है। जब आप अदद लिखते हैं तो अदद में आपको 2 में 1 छुपा हुआ नजर आता है, इससे कोई इनकार नहीं करता। हर कोई अदद बगैर 1 के नहीं बनता। अच्छा 1 क्या है? 2 अदद है डिफिनीशन के एतबार से, बच्चे ध्यान में रखें। डिफिनीशन के एतबार से 2 अदद है, 3 अदद है, क्या 1 अदद है? 1 को अदद होने के लिए उसके ऊपर हाशिया चाहिए, नीचे चाहिए, टोटल चाहिए, निस्फ चाहिए, नहीं है। 1 अदद नहीं है, 1 अदद नहीं है। 1 अदद नहीं है तो फिर 1 क्या है? तवज्जो, 1 अदद नहीं है तो 1 क्या है? 1 अदद नहीं है, 1 अदद गर है। अदद गर का मतलब हुआ अदद बनाने वाला। एक अदद की
डिफिनेशन में नहीं आता है। एक 2 को बनाता है, एक 3 को बनाता है, एक 4 को बनाता है। एक से इतने सादिर होते हैं मगर एक को कोई नहीं बनाता, एक को कोई नहीं बनाता। इन 12 ने, इन 14 ने कहा हमारी 14 में वो महजूब है, हम उसका हिजाब है, हम उसका हिजाब है, सब हमसे निकलते हैं, हम उससे निकले, लिहाजा हमारे लिए एक रब मुकर्रर कर दो, हमारे लिए खालिक व मालिक तस्लीम कर लो। उसके बाद इतना याद रखो बाकी जहां जो बना है वो हमसे ही बना है। तो ये बात समझ लीजिए, अदद बनता कैसे, अदद की डिफिनीशन क्या है, न्यूमरोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, वो नंबर बनते कैसे हैं। और उस बनने में देखिएगा कि भाई 2 के मुकाबिल में 3 क्यों। अच्छा, जैसा जैसा बनता जा रहा है, अदद का काम है बनाना, अदद का काम है बनना। जब बना तो मादूद हुआ, मादूद हुआ यानी मखलूक हुआ। मादूद क्या हुआ? मखलूक हुआ। जो मादूद है वो मसनू है, जो मादूद है वो मखलूक है, जो मादूद है वो महदूद है। अब एक अगर ये कहे मैं 2 हूँ, एक अगर ये कहे मैं 3 हूँ, तो उसको कहने का हक है, क्योंकि बगैर उसके ना 3 है, ना 2 है, ना 4 है। मगर 2 को हक नहीं वो 1 कहे, 3 को हक नहीं वो खुद को 1 कहे, यानी इस मंजिल में उसको हक नहीं है। अब ये जो 1 है अददगर है, इसका काम है 2 बनाना, 3 बनाना, 4 बनाना। अब अगर आप ये चाहें कि ये सारे अदद अपनी फना की मंजिल में आ जाएंगे तो 2 को मिट देंगे, तो आप 2 तो मिट जाएगा मगर 1 नहीं मिटेगा, 3 तो मिट जाएगा मगर 1 नहीं। क्यों? कि सारे मादूदात जहां आके खत्म हो जाएंगे वो 1 में। 1 को फैला तो सारे अदद बने, सबको सिमट दिया तो 1 बना। लेकिन चूंकि 1 भी बनने वाला हुआ ना, भाई जब सिमट दिया तो क्या हो गया? पूरा 1 बन गया। अब ये जो इस्नाइन वाहिद हो गया तो तरकीब हो गई। अब तरकीब हो गई तो मुरक्कब हुआ, मुरक्कब हुआ तो खुदा नहीं रहा। तो फिर वो जो 1 है, इसलिए मौला ने फरमाया हुवल अव्वल ला बेतबारिल अदद। उसको 1 कहो समझने के लिए, मगर 2 के मुकाबिल में 1 नहीं है। अच्छा, फिर जब 2 के मुकाबिल में 1 नहीं है तो फिर उसको वाहिद भी कहा गया। तो जब वो 1 की मंजिल में अगर गिनती के माना में कहे तो कहा कि हम हिजाबुल्लाह हैं, हम हिजाबुल्लाह है। अगर तकसीम करने की बात आई तो हम उसकी ढाल हैं। अगर तरकीब की बात आ गई तो हम वहदानियत का पर्दा है। अगर तकसीम की बात आ गई तो अल्लाह की जात का हिजाब हम है। तो कैसे? कहा कि हर वो बात जो ज़ाते हदियत पर जाए लफ्ज के, फिक्र के, अक्ल के एतबार से, और उस पर इतिराज कायम हो तो उसका हिजाब हम है। वो सब हमारे लिए है, उसके लिए कुछ नहीं है। कैसे? तो कहा कि वो तो वाहिद है, क्योंकि कुरान ने कहा वलिल्लाहिल वाहिदुल क़हार। तो जब उसने अपने को वाहिद कहा, और वाहिद कहते ही उसे है कि जो तरकीब पाले, यानी जिसके अंदर तमाम आदात मौजूद है। फिर अब क्या करें? तो मौला ने इसलिए फरमाया कि देखो वो खुदा जो सबके साथ है मगर सब में नहीं, में नहीं, क्योंकि में का मतलब ज़र्फ है। अल्लाह मजरूफ नहीं है जो में हो जाए, अल्लाह मजरूफ नहीं है जो में हो जाए, अल्लाह महमूल नहीं है जो उसे कोई उठा ले। यानी अल्लाह की जात को हमारी जात उठाए हुए है। तो कहा कि नहीं, क्योंकि जो हामिल होगा महमूल से अफजल होगा। कुर्सी का उठाने वाला कुर्सी से अफजल है, क्योंकि वो कुर्सी को उठाया हुआ है। अगर अल्लाह की जात को बंदा उठा ले तो बंदा क्या हो जाएगा? अफजल हो जाएगा, अफजल हो जाएगा ना। तो अल्लाह न महमूल है न मजरूफ है, इसलिए वो किसी शय में नहीं है। ये है नहजुल बलागा, वो किसी शय में नहीं है। जब वो किसी शय में नहीं है तो फिर उसका ताल्लुक क्या है? कहा कि बस एक कुर्ब है, कुर्ब है। अच्छा, ये कुर्ब के लिए तक की जरूरत है।
قرب کے لیے ایک ضرب کی قرب کا مطلب یہ ہوا کیسا قرب، کہا کہ قرب مادی نہیں ہے. جیسے یہ مائک ہے ایک مادہ ہے، تو اس کے لیے قرب کا مطلب یہ قریب ہونا. اب قریب ہوئے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرب کا اثر ہے. اثر قرب کی وجہ سے، مائک کے اثر قرب کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں. یہ جو آلہ ہے، آلہ مکبر الصوت، آواز کو اونچا کر کے آپ تک پہنچانا، تو اس کو کہتے ہیں آلہ مکبر الصوت. لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ اونچا کر کے، اسپیکر کی بات کو اونچا کر کے پہنچانا، اس کو کیا بولے؟ آلہ مکبر الصوت ہے. اس کی صفت ہی ہے کہ یہ آپ تک میری بات کو پہنچا دے. تو یہ بے جان شے ہے مگر میری بات کو آپ تک پہنچا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہوا قرب مادی. آپ نے میری گفتگو سنی یا سنتے رہے، کہا کہ صاحب ان کی گفتگو ایسی پیاری ہے کہ بس میں ان کے قریب ہو گیا. تو یہ جو قریب ہو گیا گفتگو سن کر، یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا جسمانی قرب نہیں ہے، اس کا مطلب ہوا معنوی قرب، یعنی ان کی محبت میرے دل میں ہوئی. اللہ قریب ہے تو کیسے قریب ہے؟ اللہ مادہ نہیں ہے جو قریب ہو، اللہ معنوی طور پہ قریب ہے. آپ کے وجود میں اس بات کا احساس ہو جانا کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے خلق کیا، آپ کے وجود میں اس بات کا پا جانا، آپ کے وجدان کا اسے محسوس کرنے کا نام ہے قرب الہی. حالانکہ خدا کے وجود کو سمجھانے کے لیے کبھی علت و معلول کی دلیل آئی، کبھی دلیل لمی، کبھی دلیل انی. علت سے معلول کو پہچانو، معلوم، وہ سب علم کلام کی باتیں ہوئی، منطق کی باتیں ہوئی، فلسفے کی باتیں ہوئی. مگر قرآن نے کیا کیا؟ نہ فلسفہ بیان کیا، نہ منطق بیان کی، نہ کلیات بیان کی. جو چیز انسان کے صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہے اس کو کھول کے بیان کیا. انسان کے نیچر میں جو چیز ہے جس کو وہ کھانے پینے کی طرح محسوس کرتا ہے، اس کے ذریعے سمجھایا. اے انسان دیکھ، میں نے زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے بنایا، ستارے کیسے بنایا، یہ سب کیسے کیسے بنایا. فلا ینظرون الی الارض کیف سطحت وغیرہ. تو اس کے ذریعے انسان ہر وہ چیز جس کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی ذہن جاتا ہے کس نے انہیں بنایا. یہ مائک بڑا شاندار ہے، بھائی کس کمپنی سے لیا، یعنی مائک کا استعمال ہوتا ہی اس کے بنانے والے پہ ذہن گیا. تو اسی طریقے سے اچھا فرنیچر دیکھا، اس کے بنانے والے پہ ذہن گیا. تو اللہ نے صانع کے ذریعے مصنوع کو پہچاننے کی دلیل دی ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے، دیکھتے ہی پہچانتا ہے. اسی کو پیش نظر رکھ کر امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، کافی میں موجود ہے، لا تفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں غور مت کرو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو نہ وہ نام ہے، نہ وہ صفت ہے، نہ وہ ضمیر ہے، نہ وہ اشارہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں. بل تفکروا فی آلاء اللہ، بل تفکروا فی عظیم الخلق، فی عظیم، لا تفکروا فی اللہ بل تفکروا فی عظیم الخلق. اللہ کی عظیم مخلوق میں غور کرو. تو جب تم اس کی عظیم مخلوق میں غور کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں عرفان خدا ہو جائے گا. اب جب اللہ تک، اللہ کو پانے کی بات ہوئی، اللہ کو ماننے کی بات ہوئی، تو بات وجود کی بنی، ذات کی بنی. ہم وجود کا مقدمہ طے کرتے ہوئے صفت تک پہنچے. صفت تک پہنچے تو پتا چلا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، مگر ایک جب کہا جائے گا تو ون ڈیوائیڈڈ ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ طے کیا جائے. اب تو زیرو کی بھی ویلیویشن ہے. ایک زمانہ تھا میکس میں زیرو کی ویلیویشن نہیں تھی، لیکن پچھلے 25-30 سال سے زیرو کی ویلیویشن ہے. غالباً زیرو کی ویلیو -1 ہے، کچھ ویلیویشن ہے بہرحال. تو اب جیسے جیسے عقلی علوم کی ترقی ہو رہی ہے تو جو صفر تھے ان کی بھی ویلیو بن گئی ہے. اب جب ویلیو بن رہی ہے تو کیسے؟ انسان کی عقل سے. تو اللہ اس ذات کا نام نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی صفت ہے تو انسانی عقل پہنچ کے اسے طے کرے. اس کو طے کرنے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل معصوم کی ضرورت ہے. اب وہاں آپ پہنچ گئے کہ جہاں پر اللہ اپنے